रिकॉर्डिंग में प्रोग्रेस है। चलो, so income tax, okay, in income tax we are having 5 units totally, but from the exam point of view, if you learn 3 units, that is enough. कितने? 3 units. So unit 1 is total theory. Unit 1 is total, मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आ जा रहा हूँ. यूनिट 1 इंट्रोडक्शन बोल के है, इंट्रोडक्शन. This is total theory unit. Again you are having 2 more units which we are going to discuss. Unit 2, house property. House property. Okay. Unit 1 introduction, long questions. Okay, long questions you will get 2. Okay, how many? 2 long questions you will get. So 2 into 15 you will get 30 marks from the long questions. And short questions you are having, short questions you are having each topic से कम each unit से एक क्वेश्चन तो पूछे. कितने? 8. So if that is the case, you will get 5 more marks for the short question. एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, कभी कभी एक से ज्यादा भी पूछते, क्योंकि 8 क्वेश्चंस they need to ask. So sometimes they will ask more than 1 question from a unit. Minimum तो एक तो पूछ लो. So total 35 you will get from first unit itself, but it is totally theory unit. You may not get total out of 35 नहीं आ सकते. ओके, दे दो 10 मार्क उनके लिए, 10 मार्क दे दिए तो भी 25 तो आपके पास आपके हाथ में रहेंगे, राइट. रिमेनिंग व्हाट we need to focus on income from house property. Okay, income from house property also you will get 2 long questions. Long questions कितने आते? 2. So 2 into again 15 marks each, so you will get 30 marks from here. Okay, at least one short question you should ask. So short questions, 1 question 5 marks, you will get how much? 5. So you are writing 35 plus 35, 70 marks paper over here itself. Total 4 questions you need to write long. So total 4 questions from these 2 units will be covered. But sometimes what happens in examination, you may forget one or other answer. In that case, we need to have a backup. That is why what I have suggest means unit 5, you are having unit 5. In this you are having 2 topics. One is capital gain, another one is income from other sources. If you go to the salary and business profession, there are many provisions. It is not easy to complete the syllabus. So what we will do, for additional 1 more question, you learn capital gain. You learn capital gain and other sources. यहाँ से थियरी पढ़ लेना 2 यूनिट में से. एक थियरी क्वेश्चन आया तो थियरी क्वेश्चन लिख देना, नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगे. कैपिटल गेन में 2-3 ही क्या है चेंजेस है, बाकी पूरे सेम है. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस देयर आर नो चेंजेस एक्सेप्ट योर असेसमेंट ईयर चेंज हुआ है पिछले साल से. सो दिस 2 ऑलरेडी इन आवर यूट्यूब चैनल में आपके पास you will be having list of income from other sources. So you can totally 10 to 12 videos are there income from other sources. If you watch those, that is enough. एक ये एडिशनल बैकअप के लिए बोलो, ये पूरा मैं समझा देता हूँ. ये क्या है, ये आपके लिए एडिशनल है. ओके, एंड कैपिटल गेन से रिलेटेड आई विल टीच इट हियर इटसेल्फ. ओके, ये पहले होने दो, उसके बाद ये करेंगे, टाइम के हिसाब से करेंगे. एंड हु आर हैविंग बैकलॉग,
इफ दे डू दिस 2 यूनिट्स, आपके बैच नहीं, आपके सीनियर वाला बैच है, कोई वो लोग भी यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे होंगे, ओके, उनके लिए बोल रहा हूँ, जो लोग बैकलॉग वाले हैं उनका यूनिट 5, आपका जो यूनिट 5 में कैपिटल गेन अदर सोर्स है ना, उनके लिए 2 यूनिट है, वो कितना 2 यूनिट है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, ये 2 उनके पास ऑलरेडी वीडियोस है पूरे विथ प्रॉब्लम्स, वीडियोस आर देयर सॉल्यूशन के साथ, दे कैन सी दोस थिंग्स, ओके, ऑलरेडी उनको पता है क्या करना है। whatever changes are there relating to capital gain, I'll put a video for them, it is in process, so that this will be managed, okay. So this is for what? Additional, these additional things for what purpose? To cover your short questions are there now, you need to write how many short questions? 5 you need to write, but here we are covering 1, here we are covering 1, अगर एक यूनिट से एक ही क्वेश्चन दे रहा तो एक एक कवर हो गए, तो और 2 लिखना बाकी है ना, वो 2 यहाँ से कवर हो जाए, ओके। कभी कभी इसी में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछते, यहाँ से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, लेकिन कभी कभी नहीं पूछते, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अलग से आपको मैं पढ़ा to cover the short questions. So out of this 25, this 35, यहाँ भी अगर उन्होंने 10 ले लिए तो भी कितना आ जाएंगे, 25 तो आ जाएंगे, उनको दे दो 25 plus 25 you will get 50 for 80 marks. मैं ये दो अभी नहीं काउंट करा, तो काउंट करें, हाँ ये 2 10 मार्क हो गए आपके शॉर्ट में, 10 मार्क शॉर्ट में हो गए, ये 10 में से भी आधा दे दो उनको, कुछ एंजॉय करने दो उनको, अपने को आधा ही देने दो, तब भी कितना हो जाएगा, ऑलरेडी 50 plus 5 55 marks you will get out of 80. Anyone has the calculator? 55 divided by 80 करो into 100, how much percentage it will be? 0.67 बोले तो into 100 करो 67.75 you will get 67% easily. अगर आप यहाँ से कम कर रहे, instead of 35 out of 35, instead of 25 if you get 30, then automatically your percentage will get increased. यहाँ पे 10 के 10 आ गए तो भी वो हो जाएगा, वो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं, ओके। what I can do is I can just support you, guide you, but what is needed is from your side you need to put efforts, because we are at the last 10 to 15 days. ये लास्ट 10-15 डेज में जितना हो सका उतना मैं कवर कर देता हूँ, क्योंकि आई नो द सब्जेक्ट वेरी वेल एंड हाउ पेपर विल बी सेट अकॉर्डिंग टू दैट, जो आसान से आप पढ़ सकते वो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके। कोरोना को थोड़ा यहाँ पे क्या करना, बधाई देना है, बिकॉज इफ यू राइट ओनली 2 यूनिट दैट इज एनफ। दूसरों के लिए तो ये लास्ट मोमेंट में 15 दिन पहले पढ़ाना बोले तो पास कर सकता हूँ बोलता था, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इतना परसेंटेज आ सकता है बोल रहा हूँ, बट इट डिपेंड्स अपॉन यूर स्किल्स, ओके। जो पढ़ाना है मैं पढ़ा देता हूँ, एंड फॉर दिस फर्स्ट यूनिट mainly which we are going to discuss first, in this first unit you are having many topics, बहुत सारे हैं लिखने के लिए, ओके, बहुत सारे हैं पढ़ने के लिए यहाँ पे यूनिट 1 में, ओके। इन यूनिट 1 you are having many things, इंट्रोडक्शन, पूरा दिमाग खराब चीज रहता है इंट्रोडक्शन में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। Already introduction से related almost all topics I have covered, YouTube videos
डेली 1 by 1 आई एम सेंडिंग। ओके, सो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है ना, व्हाट इज टैक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स, ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ये सब ऑलरेडी वीडियो आपको अपलोड हो गया है, वो वहां से आप कर लो। अब फिर से वही चीज पढ़ा है तो क्या है, टाइम वेस्ट है। आप जो थियरी पार्ट है आप कर सकते सुन के, वो मैं वीडियो लगाए, वीडियो दे दी, अगर कुछ भी डाउट है तो फिर से पूछ, राइट। नेक्स्ट चीज, इसी यूनिट से यूनिट 1 में ही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, और एक रेसिडेंशियल स्टेटस, residential status. Next you are having exempted incomes, exempted incomes. Next you are having agriculture income, agriculture income. So if you see chapter wise, these many chapters are there. Basics we will cover, residential status, exempted incomes, agriculture income. exempted incomes में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, ओके, उसमें एक लिस्ट रहेगा, वो लिस्ट पढ़ लेना है, 10-15 क्या रहेगा, exempted incomes रहेंगे जो टैक्सेबल नहीं है वो। और एग्रीकल्चर इनकम इज आल्सो वन ऑफ द exempted income, उसके लिए सेपरेट टॉपिक है, वहां से ये बोल रहे ना, इन तीनों में से आप लिख के रखो, इन तीनों टॉपिक में से एक एग्जाम में कंपलसरी आपके क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में रहेगा। कहाँ पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में इन तीनों में से एक रहना है। 99.9%, 99% आई एम सेइंग, इन तीनों में से एक रहना है, ओके। ये दो है ना, इधर से एक आने के चांसेस, ओके। सो व्हाई आई एम टेलिंग 0.9% नॉट विल नॉट कम मीन्स, कभी कभी मेरे जैसे टेढ़े लोग रहते, वो लोग क्या करते, इन तीनों को छोड़ के यहाँ से में से 2 देते, यहाँ से 2 क्वेश्चन दे दिए तो वो चांस बहुत कम रहता है। फिर भी ये पूरा यूनिट कर लिए तो 35 मार्क्स है। इनकम टैक्स का वीक पॉइंट क्या है बोले तो ये यूनिट ही, कंपलसरी 2 थियरी क्वेश्चन देना है, यहाँ से ही देना है, सबको पता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे तो आपको क्या लग रहा, इतना पढ़ना है क्या, अरे पढ़ना है भाई, पढ़े तो क्या हो जाता, मार्क्स तो आने वाले हैं ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा बोल के आपको पता है, वो पढ़ लिए तो हो जाता। मैं इतना क्लियरली क्यों बोल रहा हूँ बोले तो वो वैसा है बोल के बोल, लोग क्या करते, इसको छोड़ देते, ये हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन के प्रॉब्लम के पीछे पड़ते, ये कैपिटल गेन के क्वेश्चन के प्रॉब्लम के पीछे पड़ते, अदर सोर्स के प्रॉब्लम के पीछे पड़ते। अगर वहां पे एक भी प्रोविजन इधर उधर हो गया, तुम्हारा प्रॉब्लम पूरा गया, मार्क्स भी नहीं आते। मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स जो 80% पेपर में प्रॉब्लम्स नहीं थियरी करके वो लाए सो है, क्या लाए सो है, आउटस्टैंडिंग लाए सो है। वो लोग क्या लिखे बोले तो मैं थियरी ही लिखा सर बोल के बोले, चॉइस में रहता था ए और बी में, वो लोग क्या करे, थियरी लिखे, फिर भी क्या लाए, ओ लाए, ए लाए। सो डोंट थिंक दैट थियरी लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये सब्जेक्ट वैसा है, थियरी लिखे तो भी मार्क्स आएंगे, थियरी पढ़े तो ही आप प्रॉब्लम कर सकते, विदाउट स्टडीइंग द थियरी यू कांट डू द प्रॉब्लम, कीप इट इन माइंड। सर ये प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट नहीं है क्या, नहीं है, ये अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट नहीं है, ओके। दिस इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ व्हाट एवर इनकम टैक्स लॉ इज सेइंग, ओके। वो लॉ में जो भी रूल्स रेगुलेशंस बताए वो है,
उस समझना है, उसको प्रॉब्लम में सॉल्व करना है। और ऐसा रहता कि एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसके लिए टैक्स लायबिलिटी दे दिए तो, और दूसरे हेड का इम्पैक्ट उसके ऊपर आ जाएगा, दूसरे यूनिट का इम्पैक्ट उसके ऊपर आ जाएगा, एंड व्हाट हैपेंस, इट विल चेंज एंटायरली आंसर पूरा बदल जाएगा। ओके, टैक्स लायबिलिटी पूरा बदल जाएगा। मैक्सिमम ही में ना आस्क टैक्स लायबिलिटी, मैक्सिमम अगर पूछे तो करना पड़ेगा, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इससे पहले 12 मार्क्स का क्वेश्चन रहता था, तब टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछे तो भी चल जाते, अब वैसा नहीं है। यू ही 15 मार्क्स नहीं देते ना, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। सो यू नीड टू डू दैट। सो residential status, exempted incomes, agriculture income, these all are theory concepts. We will do one by one. Let us बोल रहा हूं ना, ये बिना पढ़े आप एग्जाम हॉल में गए, सोच लो, हो गया गया आराम से। अब पास होते होंगे लेकिन मार्क्स नहीं आने, और ये पढ़ लिए, ये कर लिए, तो क्या क्या हो जाता, आपको भी एक कॉन्फिडेंट आ जाता। हाँ, 3 क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, ये 3 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका, 30 मार्क आपके हाथ में रहे। 30 में से अगर उन्होंने 5 ले लिए तो भी, 35 में से 10 ले लिए तो भी 25 तो आएंगे। अभी पास होने के लिए और एक यूनिट है ना, उधर कुछ ना कुछ करेंगे, अपन छोड़ के आएंगे, यू विल डू समथिंग एट देयर। तो पास होना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो पढ़ना है, आपको करना है, टाइम बहुत कम है। सो बी केयरफुल विद दैट। रेजिडेंशियल स्टेटस, exempted incomes, agriculture income, and basic concepts, introduction to tax. Introduction to tax already पूरे वीडियोस कवर हो गए, एक वीडियो अभी एक ही बचा है। कौन सा बोले तो, टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, टैक्स स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में बोल के है। वो थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं थोड़ा और उसके लिए टाइम लेके बाद में बनाने वाला हूँ। और रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्जेम्प्टेड इनकम्स, एग्रीकल्चर इनकम, ये एक एक आपको ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं क्या कर देता हूँ, ये आपको रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है ना, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। एग्रीकल्चर इनकम एंड एग्जेम्प्टेड इनकम्स, इसका वीडियो ही आएगा, मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि थियरी है, ये थियरी पढ़ा के आपका टाइम अभी मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। ओके, बिकॉज दोज आर वेरी फ्यू थिंग्स। ओके, आपको समझ में आ जाता, वो थियरी है, मैं समझा देता हूँ। अगर वैसे भी समझ में नहीं आया तो तब देखिए। ओके, क्योंकि टाइम वेस्ट करना मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। वी नीड टू फोकस ऑन हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन। यहाँ पे प्रॉब्लम्स करना बोले तो पहले उसका थियरी समझना, उसके बाद प्रॉब्लम करना। वो प्रॉब्लम्स करने के लिए ही टाइम पूरा चाहिए। रेजिडेंशियल स्टेटस समझा देता हूँ, अभी 2-3 दिन में वो हो जाएगा। एग्जेम्प्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो भी समझा देता हूँ। और क्या बच जाएगा आपको, ये एग्जेम्प्टेड इनकम्स का लिस्ट रहेगा, ये एग्जेम्प्ट है बोल के, स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट इज एग्जेम्प्ट, एग्रीकल्चर इनकम is exempt as per section 10 subsection 1। ऐसा सेक्शन भी कोड करे तो ज्यादा मार्क्स आने के चांस है, बट इट शुड बी डिफाइंड एज पर सेक्शन 2A। वो सेक्शन 2A 2 सबसेक्शन 1A में डिफाइन हुआ है एग्रीकल्चर इनकम बोले तो क्या, तो वो एग्रीकल्चर इनकम क्या है, कब एग्जाम्प्ट होगा, वो पूरी डिटेल्स है। वैसे दूसरे और थोड़े एग्जेम्प्टेड इनकम्स है, उसका एक लिस्ट रहता, वो लिस्ट पढ़ के लिस्ट लिखना ही रहता है। ओके, तो ये लिस्ट पढ़ना, ये थियरी कॉन्सेप्ट है। ये रेजिडेंशियल स्टेटस भी इससे पहले प्रॉब्लम्स आते थे, लेकिन अभी ये यूनिट 1 में ला लिया ना, इससे पहले ये चीजें यूनिट 2 में रहते थे, ये 2 यूनिट 1 के थे, ये यूनिट
2 में रहते थे, यहाँ से प्रॉब्लम आता। अब यूनिट 1 में ओनली थियरी बोला, अगर पेपर सेटर ने यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे तो उसको 2 मारना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, वो थियरी का है बोल के आप सिलेबस कॉपी में लिखे, वैसे ऐसे कैसे आप प्रॉब्लम दे सकते, इससे रिलेटेड नहीं देना है ना। जब थियरी का है तो थियरी पूछो, प्रॉब्लम क्यों देते तुम, नहीं देना। लेकिन अपना यूनिवर्सिटी है ना, बंदे कुछ भी कर सकते, तो जो थियरी है उसके हिसाब से एक दो एग्जाम्पल करेंगे, वो एग्जाम्पल के साथ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो ओके, सिचुएशन देते वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, क्या है बताओ बोल के, तो वो है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, इंट्रोडक्शन का ऑलरेडी वीडियो भेजा है मैंने, रोज देखो बोल रहा हूँ, कुछ लोग देख रहे, कुछ लोग नहीं देख रहे, आज से देखने वाले ज्यादा हो जाए, क्योंकि कल ही टाइम टेबल आया ना, उसका असर अलग रहेगा। अभी तक नहीं जागे तो कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए नेक्स्ट अटेम्प्ट, ओके, उनके लिए वेट कर। इनकम टैक्स, इन इनकम टैक्स व्हाट इज टैक्स, पहले टैक्स क्या है, टैक्स बोले तो क्या, टैक्स इज ए स्टैट्यूटरी पेमेंट imposed by government and paid by public. Who is paying? Public will pay. Okay, to whom? Government. So it is a statutory payment, means a mandatory, compulsory payment. Tax is a compulsory payment made by whom? Public. To whom? Government. Why they need tax? Why they need tax? Why they need tax? To run the nation, government, and for the purpose of welfare of the people living in the country. जो पब्लिक है ना, उसका वेलफेयर करना है, तो कैसे करना, रोड डालना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, एंड अदर थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ देयर लाइवलीहुड। अभी आप लोग देख रहे हैं ना, you people all know in ration shops, people are getting rice at 2 rupees, okay, 2 rupees per kg राइस मिल रहा, असल में उसका रेट 2 rupees रहता क्या, it will be more than that. Government will buy those things at higher rate and they are providing at subsidized rate to the public. जो लोग ज्यादा पैसे पे नहीं कर सकते उनके लिए यूज होता है। अभी आजकल तो सन्ना भी है, बारीक वाला मिल रहा है, कहते 2 रुपए नहीं, हाँ, उसके लिए मेरे जैसे लोग 50 रुपए लगा रहे बाहर 1 किलो के लिए, वही कितने में मिल रहा है उनको, 2 रुपए में। What about that 48 rupees from where government is having? Whatever they are collecting in the form of taxes, that will be utilized for the people living in the country. Okay, whatever government schemes are there, policies are there, to implement those things, what they require? Funds require. Those funds will be collected in the name of tax. ये आज का है क्या? Is it nowadays? No. It is from the Asian times. जब राजा थे तब से चल रहा है, आज डायरेक्टली नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, यू नो चाणक्य, कौटिल्य, चाणक्य, यू नो चाणक्य, हाँ कौटिल्य है ना, चाणक्य है ना, है। What he did? He said the Raja, okay,
to collect the shistu, pannu, tax at that time. Okay. Lagan. Lagan malum? Lagan means some payment, compulsory payment to the गवर्नमेंट. जब ब्रिटिशर्स आए थे, लगान मूवी देखे कभी? अच्छा, लगान आमिर खान. हाँ, लगान आमिर खान नहीं, लगान मूवी उन्होंने करे. हाँ, लगान मीन्स व्हाट? इट इज ए टैक्स, नॉट दैट लगान यार. हाँ, हाँ. When Britishers came to India, they were collecting taxes from the farmers for the cultivation they are doing, produce they are making. Similarly, in India from the Asian period, it was there in the name of Shistu or Pannu, Zakat, bolte na? Like that. So different names it was collected. Suppose I am a farmer who is producing paddy. Okay. If I produce 100 bags of paddy, 10 out of that need to pay to the Raja. Why? The form of tax. Why Raja need that? He's giving permission. Permission कुछ ऐसा है? मेरा land मैं खुद कर रहा हूँ ना cultivate. Because Raja has to protect the public. How to protect the public living in the his kingdom? They need some strength of what? Soldiers. Soldiers को खाना खिलाना पड़ता ना. यूं ही बनते क्या सोल्जर? बाहुबली नहीं बनते ना. हाँ, तो वो सोल्जर्स को मेंटेन करने के लिए, if they maintain their kingdom from the outside threats, then only things can happen. So at that time, generally for the purpose of defense purpose, taxes were collected at the beginning. Nowadays it is not like that. Now taxation viewpoint has changed. Now there is no war fields everywhere. Okay, except in some countries. कोई आके बम डालेगा, कभी कुछ हो जाएगा, वैसा सिचुएशंस बहुत कम है. एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर क्या नहीं कर रहा, वॉर डिक्लेयर नहीं कर रहा. व्हाई? एवरीवन वांट्स टू ग्रो, not to capture another person, right? So some people are there doing other things like coronavirus, bio war. Yeah, it's a bio war itself. Because of that, what happened? 2 years has gone waste and we are back. Our growth has been back. Okay, by 5 years. जो ग्रोथ 5 साल में जो ग्रोथ होता है ना, वो पूरा पीछे चले गया. Not in India itself, everywhere. Whole world is suffering. It's a bio war, but no one says it directly. Let us come to the tax. Okay, so tax is nowadays it is a statutory payment. But which tax we are discussing here? Income tax. So introduction में टैक्स बोले तो क्या समझ में आ गया? बाकी जो भी इंट्रोडक्शंस के वीडियो से ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस वो आप पढ़ के वीडियो देके पढ़ लो. बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना. बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको क्या स्टार्ट हो जाता? इनकम टैक्स स्टार्ट हो जाता. which one starts? Income. Tax on what? Income. Income means income. What is income? Salary is a income. For businessman, profit is income. For someone who is not doing business, he is just a mediator. Commission is income to him. Okay. Someone who is doing business, for them profit is income. And someone who is not doing any business, okay,
he has good skills and knowledge, memory power, he is going to कौन बनेगा करोड़पति and winning the prize, it is वो भी इनकम ही है, लेकिन कौन सा कैजुअल इनकम बोलते, विंडफॉल इनकम, वी डोंट नो करेक्टली whether he will get 1 crore or not, he himself doesn't know, कौन सा क्वेश्चन वहां पे आएगा, it all about luck. Okay, does he require any extra efforts, कुछ हार्ड वर्क करना है क्या उसके लिए, nothing. So when you get windfall incomes, okay, that income winning from races, all those are casual incomes. So income can be anything, but it is defined under section 224. बाद में डिस्कस करेंगे what is income means. Okay, it can be regular or irregular. Whatever regular or irregular income you are earning, suppose you are earning a income by selling a your house property, आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है दादा परदादा का, आपने वो सेल कर दिए, जो भी पैसे आए उससे दूसरा नया घर खरीद लिया. जब when you are selling a asset property and getting any gain on that, that will be called as capital gain, that is also income. So हर साल आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं क्या, रियल एस्टेट बिजनेस वाला है तो प्रॉपर्टी सेल, बाकी नहीं, उसका बिजनेस इनकम है. बाकी अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहा तो वो कहाँ पे आएगा, कैपिटल गेन. सो देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम. ओके, फॉर द पर्पस ऑफ it is divided into 5 heads. So whatever income tax is there, okay, on income of a person, okay, income of a person relating to previous year will be assessed tax in the assessment year. What you are saying? What is income tax? Tax paid or payable on income of a person is called as income tax. Tax payment payable on income of a person, okay, is called as income tax. Income के ऊपर जो tax pay करे वो income tax, right? So where it is set, where it is mentioned, इसके लिए क्या करें, एक एक्ट लाए, क्या करें, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स का एक एक्ट लाए. उससे पहले ब्रिटिश जमाने में थे, दूसरे थे. आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वी आर फॉलोइंग व्हाट, इनकम टैक्स एक्ट 1961. and to implement this act they have made some rules and regulations. So rules are mentioned under income tax rules 1962. थोड़े चीजें इनकम टैक्स रूल से पढ़ते हैं अपन, थोड़े चीजें इनकम टैक्स एक्ट से पढ़ते. एक्ट कब आया था, 1961 में. आज भी उसी को फॉलो कर, बट डे टू डे थिंग्स आर चेंजिंग, सो टैक्स पॉलिसी इज आल्सो चेंजिंग, people living in the country are changing. So what happens, every year what happens, there will be amendments, changes to the this income tax act. Okay, how there will be changes, through finance act. Through what? Finance act. Finance act. This finance act will tell what should be the procedure to collect the tax in the next year. आपका बजट सेशंस रहते, बजट सेशन में फाइनेंस मिनिस्टर विल प्रेजेंट दी फाइनेंस बिल. वो बिल क्या हो जाएगा, वो बिल आफ्टर discussions in the budget sessions, what happens, that bill will become act when both the houses, okay, accept the bill.
वो लोगों का कंसेंट के बाद. After that it will be sent to president. When president gives his consent or assent to that bill will become act. So what will be there in the finance bill? The government policies and procedures will be there. Those will be mentioned. Next year में क्या क्या करने वाला है गवर्नमेंट, वो फाइनेंस बिल में बताते मिनिस्टर. वो चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंड्स रिक्वायर्ड है. वो रिक्वायर्ड फंड्स how they are going to collect from the public, that will be set. Okay, so that information we will get from the where finance act. Your finance act is 2019. कौन सा 2019 का जो फाइनेंस एक्ट है वो आप पढ़ रहे. अभी जो चल रहा ना वो अलग है. एवरी ईयर चेंज हो, every year it will change. Okay, so finance act will tell you how to do tax on the income of a person. Income of a person, how to calculate tax will be mentioned in the finance act and income tax act and income tax rules. ये पहले से है, कुछ भी चेंजेस है तो एवरी ईयर दे आर मेकिंग चेंजेस थ्रू फाइनेंस एक्ट. हाउ एक्ट विल कम? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बिल आफ्टर डिस्कशंस एंड चेंजेस इफ एनी रिक्वायर्ड. अपोजिशन वाले या जो पावर में है वो लोग, ये नहीं, ये ऐसा नहीं रहना है, ऐसा रहा तो अच्छा है. दे विल गिव देयर व्यू पॉइंट्स. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, दैट बिल विल बिकम एक्ट with the consent, assent or consent means जो president है ना, who is president? अच्छा, तो president क्या करते? president क्या करते? वो बिल के ऊपर साइन करते हैं. After his signature, what it will become? It will become act. Okay, this is what how act will come into picture. It may be any act, not only finance act. इंडिया में पार्लियामेंट सेशंस में क्या करना पड़ता? प्रेजेंट करना पड़ता. बोथ दी हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स, the majority of their consent bill will get passed at the parliament. After passing at the parliament, it will be sent to the president and president will give his opinion. If any changes required, they will change. Otherwise, generally president will sign on the bill. It will become act. So बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स. इनकम टैक्स कैसे है, क्या है, उसमें बेसिक बातें आपको याद रखना. तो बेसिक्स में क्या है बोलो, व्हाट आई एम सेइंग, इनकम ऑफ ए पर्सन, इनकम ऑफ ए पर्सन रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर. विच ईयर? Previous year will be assessed to tax in the assessment year. Which year? So there are different terms here. One is income, we need to know. Another one, person, we need to know. What is previous year? What is assessment year? What is assess or assessment means what? So income, I said income has a wide scope. Okay, which is regularly in nature, that is also income. Which is not regular in nature, that is also income. Your profit will become income, your salary will become income. Any other thing which is has general meaning, that is income. Anything specifically said as income, that is also income. Where it is defined as per section 224, it is being defined. So we need to learn
Okay, we will learn income definition later on, but first focus on the person. Okay, who is person? Person can be natural person or artificial person. Person can be a natural person and artificial person. Natural person means individual. Who will be individual? He, she. Okay, he or she means human beings like me, you. Those are individuals. Okay, HUF. Have you ever heard about HUF? ये पर्सन है. ये कौन है? पर्सन है. कहाँ पे लिखा है? आपके पास टेक्स्ट बुक है तो देखो, सेक्शन 231 में लिखा हुआ रहेगा पर्सन का डेफिनेशन. So who is individual? Individual is a he or she. Okay. HUF, Hindu undivided family. The business unit which is being done by family as a whole is called as HUF. Hindu undivided family. पूरा फैमिली मिलके क्या कर रहा? बिजनेस चला रहे हैं. They will also become person. Okay. Head of the family, कर्ता. मालूम है ना? इंटर में पढ़े सो वही है. Next, AOP or BOI. What is AOP? Association of person. BOI, body of individuals. Means there are many people under AOP. Okay. AOP can be of any person. Okay. Association of person means an individual and a individual is a person. HUF also a person. If together doing a business, then that will become AOP. समझ में आ रहा? ये HUF है ना, ये HUF जो भी है एक HUF है. पूरे क्या है ना, डॉक्टर्स है. पूरे कौन है? डॉक्टर्स. एक हार्ट सर्जन है, कार्डियोलॉजिस्ट. एक ऑप्टिमोलॉजिस्ट जो आंखों का स्पेशलिस्ट है. एक न्यूरो सर्जन है, नर्वस सिस्टम देखता. पूरे फैमिली में क्या है? डॉक्टर्स का फैमिली. वो पूरे मिलके क्या कर रहे? एक हॉस्पिटल चला रहे. ओके. ओके. HUF family is a person. Okay. And individuals. Okay. दूसरे इंडिविजुअल्स है. ओके. ये इंडिविजुअल और एक एक्सपर्ट है. ओके. उन्होंने क्या? उन्होंने भी डॉक्टर है. ओके. दिस फैमिली इज डूइंग which business? Doctor business. But they are having only relating to what? Cardiology, neurosurgeon. Okay. लेकिन एक इंडिविजुअल है, उन्होंने बोन सेटर है. कौन सा? बोन सेटर है. किसी का हाथ पांव टूट गए तो इन्हों सेट करता. वो काम इनको नहीं आता. तो ये लोग दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? इनके पास भी किसी का हाथ पांव टूट गया तो इनके पास आते ना लोग. तो ये इंडिविजुअल वो बंदा है. ओके. ओके. तो उन्होंने क्या करना? वो सर्विसेज ये हॉस्पिटल में देना. तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे? एक बिजनेस चला रहे. सो इंडिविजुअल एंड HUF. दिस इज वन पर्सन, दिस इज वन पर्सन. अनदर और एक इंडिविजुअल. ओके. कुछ नाम बताओ, मैं तो नाम ले लेंगे नहीं तो. ओके. ओके. शाम है. ये शाम जो है ना, नाम में शाम है, लेकिन आई स्पेशलिस्ट है. ओके. ENT बोल देना. ENT है. इनके पास ENT नहीं है तो क्या करते? शाम को बुला लिए. शाम आके क्या करेगा?
जो भी अंधे लोग है ना, जो भी नहीं सुनने वाले हैं ना, उनको इलाज कर रहा. So E is also individual, means a person. HEF is also person. Together they are forming a association that is also called as person. So person के definition में है with the association of different persons. Okay, a association with different persons are there, that is called AOP. BOI क्या है फिर? What is BOI? Body of individuals. Means यहाँ पे एक बंदा है, ओके, यहाँ पे और एक इंडिविजुअल है, एंड वन मोर इज देयर. These three people, you know, डॉक्टर है, you know, इंजीनियर है, बंगला वगैरह बनाने वाला सिविल इंजीनियर, ओके, सिविल इंजीनियर है, ओके, और एक यू नो लॉयर है, ब्लैक कोट वाला, यू नो व्हाइट कोट वाला, ओके. ये तीनों मिलके, ओके, नाम भी रख देंगे, राम पवन, अच्छा, राम पवन, चिंटू, अरे चिंटू, राम पवन शिवा, हनुमान लगाएंगे, सेट हो जाएगा. राम पवन हनुमान है, ओके. राम पवन हनुमान मिलके क्या कर रहे हैं? एक RPH, RPH सर्विसेज बोल के एक बिजनेस यूनिट बना. He is a individual. He is also individual. He is also individual. कोई लॉयर का काम है तो इन्हों देख लेगा, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो इन्हें देख लेते, यू नो, डॉक्टर से रिलेटेड. सो दे आर प्रोवाइडिंग ऑल सर्विसेज टुगेदर. एक ही जगह पे आपको सब मिल जाएंगे, इनके पास गए तो बस. हाँ, सब वो लोग देख ले. सो दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ individual. All, if they all are doctors, and then also body of individuals. If they are individuals, यहाँ पे बीच में क्या होना गया? HUF आया था, यहाँ पे HUF नहीं है, ओके. नेक्स्ट, firm or LLP. What it is? Firm or LLP. Next, firm means partnership firm. LLP means limited liability partnership. Next, company. Company मालूम है ना, which is registered under Companies Act 2013 is a company, or any other act in force in India, that is a company, okay. Company is also a person. HUF is also person. Individual also a person, okay. Individual, HUF, AOP, BOI, firm, LLP, company, any other artificial पर्सन, इसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? AJP बोलते. एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ओके. एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, local authority. Local authority means municipalities, like that will be there, na? Those comes under in the definition of person. Next, what we are having? Previous year. Income है और वो एक person से related है, and which is previous year, relating to previous year. वो कब का होना है? Previous year से related है. वो कब टैक्स होगा? असेसमेंट ईयर में टैक्स होगा. प्रीवियस ईयर का इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्स होगा. कब टैक्स होगा? असेस्ड मींस कैलकुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, ओके. वैल्यूएशन को असेसमेंट, असेस. सो
income of a person relating to previous year will be assessed to tax in the assessment year. What is previous year then? What is previous year then? Previous year बोले तो क्या? What is the previous year? Last year. अच्छा. क्या होता सर? Previous year as per the definition different things. What is previous year means? Financial year. A financial year which start from 1st April and ends with the 31st March is the previous year. The income year is the previous year. जिस साल में आप income earn कर रहे, that is known as previous year. Previous year also called as income earned year. जिस साल आप income कमा रहे, जब आपको income आ रहा, वो year previous year है. Because previous year income will be assessed to tax in the assessment year. Assessment year में क्या करते हैं? Tax payment करते हैं. Tax income कब का रहता? Previous year का. So previous year starts from and ends with the 31st March. Okay. Generally previous year will be of 12 months period generally. But suppose I am an individual, I am doing a business and I have started my business in the month of July. Then my previous year will start from not 1st April. मेरा business कब start हुआ? जुलाई से ही ना. तो जुलाई से मार्च तक जो भी इनकम है कमा रहा हूँ वो क्या हो जाएगा? मेरा previous year हो जाएगा. So generally it will be of 12 months. But in certain cases, if you are a new person who is doing the business like that, new business unit वैसा है तो उसके लिए from the start of the business to the end of the financial year, that will be, so generally it will be 12 months. Sometimes it will be less than the 12 months. Starts with 1st April, ends with 31st March. Or in case some cases it starts from the when income earning started. Okay, when you have started a new thing, new activity, that from that date to the end of the financial year, that is 31st March. What is our current previous year? आपका previous year कौन सा है बोले तो 2019 to 20 means it starts on current previous year starts on 1st April 2019 and ends with 31st March 2020. Okay, this is your current previous year. आपका previous year ये है. ये year में जो भी income आया वो income next year में. और एक definition ऐसा रहेगा, घुमा देगा पूरा दिमाग. The immediate financial year before the assessment year. The immediate financial year before the assessment year is known as previous year. Assessment year से पहला वाला financial year क्या है? Previous year है. ऐसा एक्ट बता रहा definition इसका previous year का. Previous year का definition वैसा है. The immediate financial year before the assessment year. Assessment year से पहले वाला financial year ही क्या है आपका? Previous year है. Whatever income earned in the previous year will be taxed in the assessment year. So it is also called as income year. It is also called as income year. It starts on 1st April and ends with the 31st March. Sometimes it's in case of new businesses, it starts from the date when we have started the business and ends with the 31st March. So sometimes it may be less than the 12 months. Clear? Our current previous year is 2019-20, starts with the 1st April 2019 and ends with the 31st March 2019. इतने पॉइंट्स बता दिए प्रीवियस ईयर के बारे में बस. शॉर्ट क्वेश्चन में 5 मार्क्स में आएगा.
5 मार्क्स में आएगा। अभी जो भी मैंने बताया वो पर्सन आ सकता है या प्रीवियस ईयर आ सकता है, कभी कभी असेसमेंट ईयर आ सकता है। प्रीवियस ईयर पता कर लिए तो असेसमेंट ईयर भी पता करना है। व्हाट इज असेसमेंट ईयर? करंट ईयर नहीं। असेसमेंट ईयर मीन्स the immediate financial year after the previous year, relevant previous year is assessment. क्या बोल रहा? प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ही असेसमेंट ईयर है। बहुत अच्छा डेफिनेशन है ना। प्रीवियस ईयर बोले तो क्या बोले तो असेसमेंट ईयर से पहले वाला फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर, राइट? व्हाट इज असेसमेंट ईयर मींस जो प्रीवियस ईयर है उसका इमीडिएट ईयर असेसमेंट ईयर। खूब बताए, सलाम करना इनको। वैसा ही है डेफिनेशन, आप देखो टेक्स्ट बुक में, लेकिन याद रखना वैसा ही। तो मतलब क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर ऐसा है। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा असेसमेंट ईयर बोलो बोल के, बस असेसमेंट ईयर। व्हाट इज असेसमेंट ईयर मींस द इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर relevant to the previous year is known as assessment year. It starts on 1st April and ends with the 31st March. दोनों वैसे ही है। And assessment year is always 12 months period. अब कभी भी बिजनेस स्टार्ट करो, ईयर तो वही होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर होने के बाद नेक्स्ट ईयर में असेसमेंट होगा। इन द असेसमेंट ईयर पर्सन विल लायबल टू पे टैक्स, so it is also known as tax payment year. क्या बोलते हैं उसको? tax payment year भी बोलते हैं। so that is what assessment year means. ये पूरे बोल रहा हूँ ना, एक ना एक 5 मार्क का आपको आने का चांसेस आउट ऑफ दिस डेफिनेशन। दैट इज वाई ये मैं डायरेक्टली लाइव में आपको सिखा रहा हूँ। इसके लिए भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन नहीं बना रहे क्यों बोले तो आने के ज्यादा चांसेस है। ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो अगर दिमाग में नहीं आए तो कुछ नहीं कर सकते। सो व्हाट इज असेसमेंट ईयर मींस द इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द प्रीवियस ईयर नोन एज असेसमेंट ईयर एंड it is always 12 months period, starts from 1st April 2000 1st April and ends with the 31st March. Our current assessment year is 2020-21, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्या है 2019-20 है ना। इसका इमीडिएट ईयर ही क्या हो जाएगा? असेसमेंट ईयर हो जाएगा। ओके, असेसमेंट ईयर में क्या करते हैं? टैक्स पेमेंट करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टैक्स पेमेंट ईयर आल्सो यू विल कम। जनरली प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर विल बी डिफर, दो अलग रहते हैं, but there is an exception to this rule. Generally previous year अलग रहता, assessment year अलग रहता, but there are some exceptional situations where your assessment year and previous year will be different. Okay, इन चीजों में आपका क्या रहेगा? assessment year previous year अलग रहेगा। exception to general rule for the previous year and assessment year. For them, your previous year and assessment year will be one night the same. ये सिचुएशन में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एक ही रहेगा। कौन से बोले तो the person who is doing shipping business in India. Okay, person नॉन रेसिडेंट पर्सन कौन है? नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में उनका रेसिडेंस नहीं है, वो इंडिया में रेसिडेंट नहीं है, बट डूइंग शिपिंग बिजनेस इन इंडिया। बोले तो बाहर से यहाँ पे आके क्या कर रहा? शिप में बिजनेस करके चले जा। ओके, वो टाइटैनिक शिप याद है ना, वैसे वाला। वो अपना नहीं है ना, वो शिप डूब गया सॉरी। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? शिप में आते वक्त थोड़ा लोगों को सेल कर रहे। ओके, डूइंग द बिजनेस इन द शिप इटसेल्फ। फॉर देम फिर यहाँ पे आके सेल करके चले गया, तो पैसे कौन पे करना? इनकम के ऊपर फिर इंडिया में कमा के चले जा रहे, तो क्योंकि यहाँ पे सिटीजन नहीं हो,
चले गए तो फिर कौन पकड़ना आपको बाद में, जब आ रहे ना तभी क्या करो, पेमेंट भी कर दो। नेक्स्ट ईयर में पे कर दो, नेक्स्ट ईयर तुम कहाँ पे, मैं कहाँ, where you will be, we don't know. So for them previous year and assessment year will be same. Okay, any business which is formed for the temporary purpose, गणेश मंडप याद रखो, शिप में लेके आ रहे गणेश जी को और क्या करते, निमज्जन करके चले जा रहे। गणेश मंडप कितने दिन रहेगा, टेम्पररी पर्पस 11 डेज के लिए, वैसे। तो ये जो है ना, ये जो है बिजनेस जो लोग कर रहे, क्या कितने दिन के लिए, टेम्पररी पर्पस के लिए कर रहे। नेक्स्ट ईयर में तुम जाके पूछे तो बोर्ड घुमा दिए, नाम ही नहीं है बिजनेस का, वहां पे देखे तो दूसरा बंदा है, तो उनके पैसे फिर इनकम अर्न कर लिए, टेम्पररी पर्पस में चले गए। जनरली इफ यू सी क्रैकर्स बिजनेस, you know how many days it will be, 2 to 3 days, right? 2 to 3 days what they will do, they will sell before Diwali, after Diwali, छोटी दिवाली के लिए कभी कभी अगर कुछ बच गया तो लगाते, नहीं तो नहीं लगाते, राइट? नेक्स्ट ईयर में उन्होंने फिर से दुकान नहीं लगाया, इनकम अर्न कर लिए, फिर कैसा, which are formed for temporary purpose, for them previous year and assessment year will be 196. One, non-resident Indian doing shipping business. Secondly, which are formed for the temporary purpose, person leaving India, and he will not return again, person who is leaving India and will not return again. फिर कैसा, इस साल में पैसे कमा लिए, बाहर अब्रॉड चले जा रहे, फिर टैक्स कौन पे करना भाई नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में, तो फॉर देम व्हाट हैपेंस, previous year and assessment year will be 197. For them previous year and assessment year will be 197. Any person who has discontinued the business, any person who has discontinued the business, business जो है ना उन्होंने क्या कर दिए, डिसकंटिन्यू कर दिए, बोले तो वाइंड अप कर दिए, खेल खत्म दुकान बंद बोल रहे, अच्छा खेल खत्म दुकान बंद, नेक्स्ट ईयर गए तो मैं पूरे लॉसेस में डूब गया, मैं कहाँ से टैक्स पे करूं बोल के बोलने वाले, तो नेक्स्ट ईयर तक लोग रुकते क्या, तो असेसिंग ऑफिसर क्या बोलेगा, कुछ लोग जेन्युइन रहते, वो लोग क्या घर परिवार यहीं पे रहता, बिजनेस हालत अच्छी नहीं है इसलिए क्या कर रहे, क्लोज कर रहे, तो वो लोग टाइम पूछेंगे। इन दैट केस if assessing officer is satisfied, then what happens, he may allow him to pay tax in the assessment year, otherwise those person who are discontinuing the business, for them assessment year and previous year will be 196. Please remember these points, these will be there as a short question. What is assessment year, what is previous year, what are the exception to जनरल रूल, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, ये सब चीजें आपको पूछनी। तो कहाँ तक हो गया अपना, पर्सन हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, असेसमेंट ईयर हो गया, इनकम हो गया। ओके, टाइम क्या होगा 6:30. So today we will end up here. Tomorrow we will discuss the income tax कंप्यूटेशन कैसे कर, टैक्स कैसे कैलकुलेट कर, आज के लिए फिर ऊपर से गए तो फिर वेस्ट हो जाएगा। सो टुमारो वी विल डिस्कस रिमेनिंग थिंग्स, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। ओके, मैं डायरेक्टली वहीं पे चले जा रहा हूँ जहाँ पे आपको जरूरी है। ओके, सो टुमारो एट 4:30 was not late like today.